dedicated environmentalist and a committed parliamentarian. Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Ki Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a dedicated social worker whose commitment to the cause of the upliftment of the most downtrodden was reflected equally both inside and outside the house. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. She represented the state of Himachal Pradesh in this August House from April 1980 to 1986. Born on 6th August 1933 in Lahore, undivided India, Shrimati Usha Malhotra was actively associated with the Indian Red Cross Society and women's welfare activities. An ardent advocate of women empowerment, she broke gender stereotype in public life. She also represented the nation at various conferences in Geneva, Moscow, and Brighton. With the loss of Srimati Usha Malhotra, the country has lost an ardent advocate of gender justice and a face of women empowerment. Sri Solipeta Ramchandra Reddy, who passed away on 27 June 2023, represented the state of Andhra Pradesh from April 1996 to 2022. Sri Reddy also served as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 1972 to 1978. Born on 17th May 1935 in Siddipet district of the present state of Telangana, Sri Reddy worked relentlessly for the cause of farmers, workers, women, and always advocated for greater harmony among fellow citizens. In the passing away of Sri Solipeta Ramchandra Reddy, the country has lost a committed soul who represented the interests of the most downtrodden in this house. We deeply mourn the passing away of Sri Hardwar Dubey, Sri Dav Lama, Srimati Usha Malhotra, and Sri Solipeta Ramchandra Reddy. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our deep sense of profound sorrow and sympathy. As a mark of respect
to the memory of Sri Hardwar Dubey, sitting member. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. And natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Sri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Sri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Tea Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a dedicated social worker whose commitment to the cause of the upliftment of the most downtrodden was reflected equally both inside and outside the house. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. She represented the state of Himachal Pradesh in this August House from April 1980 to 1986. Born on 6th August 1933 in Lahore, undivided India, Shrimati Usha Malhotra was actively associated with the Indian Red Cross Society and women's welfare activities. An ardent advocate of women empowerment, she broke gender stereotype in public life. She also represented the nation at various conferences in Geneva, Moscow, and Brighton. With the loss of Srimati Usha Malhotra, the country has lost
an ardent advocate of gender justice and a face of women empowerment. Shri Solipeta Ramachandra Reddy, who passed away on 27 June 2023, represented the state of Andhra Pradesh from April 1996 to 2022. Shri Reddy also served as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 1972 to 1978. Born on 17th May 1935 in Siddipet district of the present state of Telangana, Shri Reddy worked relentlessly for the cause of farmers, workers, women, and always advocated for greater harmony among fellow citizens. In the passing away of Shri Solipeta Ramachandra Reddy, the country has lost a committed soul who represented the interests of the most downtrodden in this house. We deeply mourn the passing away of Shri Hardwar Dubey, Shri Dav Lama, Srimati Usha Malhotra, and Shri Solipeta Ramachandra Reddy. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our deep sense of profound sorrow and sympathy. As a mark of respect to the memory of Shri Hardwar Dubey, sitting member, the House stands adjourned to meet at 12 noon today. Wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House.
Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Sri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Sri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Ki Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a dedicated social worker whose commitment to the cause of the upliftment of the most downtrodden was reflected equally both inside and outside the house. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. She represented महासचिव पंजाब श्री सुशील कुमार रिंकू। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने 2 साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया ने इसी लोकसभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।
इससे पूर्व वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव याद रखा जाएगा। श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाव और सुरेश नारायण धनोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रणजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रणजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथी प्राक्कलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्वनदम केनिथी का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानूंगो ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के
पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अनादि चरण दास का निधन 16 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री निहाल सिंह का निधन 20 जून 2000 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ। ये तिरंगा झंडा हमारे स्वराज का प्रतीक है जी का तथा माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल बोरेश्वर पाटिल जी का स्वागत है। रिस्पेक्टेड सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय दिर्गी जी का, यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते। संसाधन विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को अपना प्रयाण बनाया। पोषित और वंचित के बीच कोई गैप ना रहे, ये एक समेकित कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ने सच कर दिखाया। और हमें गर्व है कि पहली बार किसी मंत्रालय में 100% सैचुरेशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और अब हमारा आग्रह है, रिस्पेक्टेड सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय तिर्की जी, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज, भूमि सम्मान प्राप्त करने के लिए राज्यों से पधारे वरिष्ठ राजस्व अधिकारीगण, जिला कलेक्टर्स, अधिकारी साथियों एवं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, भूमि सम्मान के इस प्रतिष्ठित समारोह में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आज का समारोह अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है, क्योंकि आज राज्यों एवं यूटीज के राजस्व अधिकारियों को पहली बार उनके राजस्व कार्यों में उत्कृष्टता के लिए सम्मान प्राप्त होगा। इस अवसर की गरिमा बढ़ाने और भूमि सम्मान को संस्थागत रूप देने के लिए माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय का मैं अत्यंत आभारी हूं और मंत्रालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं माननीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री और माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस का आधार है। यह माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का मानना है।
क्योंकि भूमि के कागजात अथवा लैंड रिकॉर्ड्स केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन के लगभग सभी योजनाओं के आधार होते हैं, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह समर्थन मूल्य खरीदी की योजना हो, चाहे वह नेशनल हाईवे जैसे अधोसंरचना के प्रोजेक्ट्स हों जिसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, या भूमि के क्रय विक्रय अथवा उत्तराधिकार का मामला हो, अथवा कोई भी अन्य योजना हो। लैंड रिकॉर्ड्स ही प्रारंभिक दस्तावेज होते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके आधार पर पूरी योजना कार्यान्वित होती है। इन्हीं कारणों से भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन किया जाकर नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों को स्पष्ट बनाया जाता है, ताकि नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों की रक्षा हो। भूमि सम्मान का प्रारंभिक सोच माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का ही है। भूमि सम्मान योजना की अवधारणा यह है कि जिन जिलों में डीआरएमपी के 6 घटक या कोर कंपोनेंट्स में 100% प्रगति हासिल की है या सैचुरेशन हासिल की है, उन्हें आज भारत के राष्ट्रपति महोदया द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस अनूठे भूमि सम्मान स्कीम में 68 जिलों ने स्कीम के अंतर्गत सैचुरेशन हासिल किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विभाग, राज्यों, यूटी सरकारों ने यह तय किया है कि 31 मार्च 2024 तक हम देश में कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन के कोर कंपोनेंट्स को सभी जिलों में सैचुरेट करेंगे। Have you heard about this Samsung flip phone? It's great for group shots. Once you see it, you must have it. इस भूमि सम्मान स्कीम की विशेषता यह भी है कि स्टेट्स, यूटीज द्वारा ही कोर कंपोनेंट्स के अंतर्गत प्रगति के आंकड़े विभाग को भेजे जाते हैं और विभाग सूक्ष्मता से उन आंकड़ों का परीक्षण एवं सत्यापन करता है। अर्थात भूमि सम्मान केंद्र सरकारों के बीच विश्वास पर आधारित होकर एक पुख्ता एवं पुष्ट कार्यक्रम है और इन्हीं कारणों से भूमि सम्मान संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एवं साझेदारी का एक सशक्त उदाहरण है। मैं आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि सम्मान समारोह में पधारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय। महाकवि पंत ने कहा था, भारत माता ग्रामवासिनी। हमारी अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका भू संसाधन पर ही निर्भर है। डीआईएल आरएमपी ने एक रूपता, सामंजस्यता, अनुकूलता से विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स के साथ तारतम्य बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति
एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुसरण कर इतिहास बनाया। आज 9 राज्यों और जिलों के कर्मवीरों की कर्मठता को हम नमन करते हैं, जिन्होंने सैचुरेशन के सपने को साकार किया। आइए देखते हैं ये फिल्म। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत की साधना है, 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। गुड गवर्नेंस यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, लोगों तक सुविधाओं की आसान पहुंच और न्यायपरकता हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भूमि संसाधन विभाग ने साल 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के विजन को देश के सामने रखा। यह विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, किसानों के हक का, सर्वश्रेष्ठ भूमि अभिलेख इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने का, तकनीक से नए भारत के निर्माण का, अमृत काल का और गांवों के कल्याण का। आज आपकी जमीन की एक एक इंच की जानकारी अब पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम में अपना 100% सहयोग दिया, जिसने भूमि प्रबंधन और सुशासन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत सरकार का वो प्रोग्राम जिसकी तकनीक, सोच और अप्रोच ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। एक देश एक प्रणाली की दिशा में भू आधार एक मजबूत कदम साबित हुआ, जिसने प्रत्येक भूखंड को नई पहचान दी। जियो रेफरेंसिंग पर आधारित ULPIN नंबर आपके भूखंड की सही और सटीक जानकारी देता है। 27 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भू आधार को लागू कर चुके हैं। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनाया। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NGDRS के साथ पंजीकरण की जानकारी साझा भी कर रहे हैं। इस योजना ने बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पर रोक लगाई, समय और अनावश्यक खर्चे की बचत की, जमीन संबंधी विवादों को हल करना आसान कर दिया, तो 406 जिलों में किसानों को वित्तीय सहायता मिलना आसान बनाया। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों और भू मानचित्रों को डिजिटाइज किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि आजादी के इस अमृत काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं सैचुरेट हों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और कोई भी इनसे वंचित ना रहे। इसी संकल्प से प्रेरित होकर भूमि संसाधन विभाग ने DILR MP के अंतर्गत साल 2022 से हर जिले और राज्य के लिए परफॉर्मेंस का एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू। ऐसी युक्ति। यह राष्ट्रपति महोदय आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया राज्यों को तथा जिलों को भूमि सम्मान तथा प्लाट कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया। अवार्ड को, इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। झारखंड राज्य श्री अमिताभ कौशल, सेक्रेटरी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और उनके ग्रुप के सदस्यगण इस सम्मान को ग्रहण करते हुए। राज्य मध्य प्रदेश डॉक्टर संजय गोयल, कमिश्नर एंड एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और उनके ग्रुप के सदस्य। ओडिशा
श्री सत्यव्रत साहू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उनके ग्रुप के सदस्यगण पूरे उत्साह के साथ मंच पर उपस्थित। राज्य त्रिपुरा, श्री पुनीत अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनके ग्रुप के सदस्य इस सम्मान को ग्रहण करते हुए वेस्ट बंगाल, Mrs. स्मारकी महापात्रा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड LRC वेस्ट बंगाल, और उनके ग्रुप के सदस्यगण। और अब बारी आती है जिलों की। असम की ओर चल रहे हैं दरांग जिला, श्री मुनीन्द्रनाथ नाटे, डिप्टी कमिश्नर, और उनके ग्रुप के सदस्य। डिस्ट्रिक्ट बिहार में चल रहे हैं भोजपुर, श्री राजकुमार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके ग्रुप के सदस्य। जहानाबाद, श्री रिची पांडे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला किशनगंज, श्री श्रीकांत शास्त्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके ग्रुप के सदस्यगण सदस्य मंच पर उपस्थित पूरे हर्ष के साथ। नालंदा जिला, श्री जय सिंह, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, और उनके ग्रुप के सदस्यगण यहां पर मौजूद। छत्तीसगढ़ की ओर बेमितरा, श्री पदम सिंह एल्मा, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके ग्रुप के सदस्य। सरगुजा जिला, श्री कुंदन कुमार, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके ग्रुप के सदस्य। रुख करते हैं गुजरात की ओर। जिला अरावली, मिस प्रशस्ति पारीक, कलेक्टर, और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला डांग, श्री महेश कुमार पटेल, कलेक्टर, और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला जामनगर, श्री बीजे शाह, कलेक्टर, और उनके ग्रुप के सदस्य पूरे उत्साह के साथ मंच पर मौजूद। जिला मेहसाना, श्री एम नागराजन, कलेक्टर, और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर मौजूद सम्मान हासिल करने के लिए।
जिला नर्मदा मिस श्वेता तियोतिया कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर पूरे हर्ष के साथ मौजूद। जिला साबरकांठा श्री निमेश दवे कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। मध्य प्रदेश की ओर चल रहे हैं अगर मालवा श्री राजेंद्र सिंह रघुवंशी जॉइंट कलेक्टर और ग्रुप के सदस्य। अलीराजपुर जिला मिस अनुपमा निमाता मिस अनुपमा निनामा एडीएम और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला अनूपपुर श्री आशीष वशिष्ठ कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। बारी आती है भोपाल की। श्रीमती माया अवस्थी एडिशनल कलेक्टर और ग्रुप की सदस्य। मध्य प्रदेश का जिला गुना कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबल ए और ग्रुप के सदस्य मंच पर उपस्थित सम्मान हासिल करने के लिए। And the extra. Think outside, think extra. बारी आती है हरदा जिले की। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग और ग्रुप के सदस्य। जिला इंदौर कलेक्टर श्री टी इलिया राजा और समूह के सदस्य। बारी आती है जिला खरगोन मध्य प्रदेश। श्री प्रताप कुमार अगासिया डिप्टी कलेक्टर और उनके समूह के सदस्य। चलते हैं नीमच की ओर। मिस नेहा मीना और ग्रुप की सदस्य। नेहा मीना एडिशनल कलेक्टर। जिला सीधी श्री साकेत मालविया कलेक्टर और समूह के सदस्य पूरे हर्ष के साथ उत्साह के साथ मंच पर। जिला सिंगरौली श्री ऋषि पवार एसडीएम और ग्रुप के सदस्य। जिला टीकमगढ़ श्री संजय कुमार जैन जॉइंट कलेक्टर और समूह के सदस्य। जिला उज्जैन श्री कुमार पुरुषोत्तम कलेक्टर और ग्रुप के सदस्य। जिला उमरिया
SLR श्री सतीश सोनी और ग्रुप के सदस्य। जिला विदिशा कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री उमा शंकर भार्गव और उनके समूह के सदस्य। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है उन्हें हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले जिनको सम्मानित किया और जिनको सम्मानित होना है उन सभी को मैं राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये आयोजन हुआ है, स्वाक्षरी से अंगूठे तक ले आई। उंगली उठे तो बदनामी होती है, अंगूठा उठे तो तारीफ होती है, और अंगूठे से अगर उंगली मिल जाए तो लाजवाब होता है। टेक्नोलॉजी का अंगूठा तो हम लोगों ने आपको दिया है, अभी आपके उंगली को जोड़ना है। आप ये उंगली को जोड़ के लाजवाब काम करेंगे तो आज जो 68 लोगों का सम्मान यहाँ पे हो रहा है, हमारे देश में 750 जिले हैं, उसमें से 504 जिलों ने अपना काम शुरू किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं 140 करोड़ हम देशवासी हैं, एक कदम हम लोग आगे चलेंगे तो देश 140 करोड़ कदम आगे चलता है। हमारे मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी देके एक कदम आगे बढ़ाया है। आप अगर एक कदम अभी आगे बढ़ाओगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ के आपको सहयोग देंगे। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया, नक्शे को डिजिटल किया गया, फिर इन दोनों को लिंक किया और दोनों को लिंक करके रजिस्टर ऑफिस को भी उससे जोड़ दिया, रेवेन्यू ऑफिस को भी उससे जोड़ दिया। आगे चल के लैंड रिकॉर्ड को बैंक से जोड़ने का भी संकल्प हमारे मंत्रालय का है, ना बल्कि बैंक से कोड से भी इसको जोड़ा जाएगा। तो ये सारा जब कार्यान्वित होगा तो देश में निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में क्रांति होगी, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल है। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरे यहां पे एक आदमी मेरे पास आ गया, उसने कहा कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? तो आपके पड़ोस के गांव का एक सरपंच है, उसने मुझे एक सर्वे नंबर का, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे महाराष्ट्र में उसको उतारा बोलते हैं, जो लैंड का रिकॉर्ड होता है जमीन का, वो दिखाया और मेरे से 5 लाख रुपया टोकन लिया। तो मैंने उसको टोकन दे दिया। उसने कहा कि ये आदमी जो मालिक है मुंबई में रहता है, टोकन आप दे दो, बाद में आपकी मीटिंग कराऊंगा उनसे। मैंने टोकन देने के बाद जब रिकॉर्ड चेक करने में गया तो वो जमीन के रिकॉर्ड पे लिखा था गुरचरण सिंह। तो मुझे लगा कोई हमारा सरदार बंधु होगा, उसकी लैंड होगी, इसलिए मैंने दे दिया टोकन। लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किया उसने तो हमारे यहाँ पे गायरान जो जगह होती है उसको महाराष्ट्र में गुरचरण बोलते हैं,
इस बंदे ने उसको सिंह जोड़ दिया और वो गुरुचरण सिंह कर दिया। अगर ये टेक्नोलॉजी से उस वक्त ये सारा लिंक हुआ होता तो कोई गुरुचरण सिंह नहीं बना पाता। ये फायदा है ये टेक्नोलॉजी का। और अजय जी ने यहाँ पे बात की नेशनल हाईवे की। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट जब बनता है, नेशनल हाईवे हो, रेल हो, स्टेट हाईवे हो, उसमें एक और बड़ी दिक्कत आती है। ये 50 खेत अगर रहेंगे तो उसका एक ही सर्वे नंबर होता है, फिर उसमें कुछ बटा होता है, हमारे यहाँ पे उसको पैकी बोलते हैं, तो पता नहीं चलता है किसकी लैंड जा रही है। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या स्टेट में? टेक्नोलॉजी तो हमने दी है, इसमें जो बटा है वो इस टेक्नोलॉजी से जोड़ के ऑलरेडी किसकी लैंड जा रही है ये अगर पता हो जाएगा तो ये जो झगड़े होते हैं लैंड के, ये बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे प्रधानमंत्री हमारे हमेशा कहते हैं कि ये सब लोगों तक जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्यों आई? क्योंकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर हम मैन्युअली करते जाएंगे तो कोई मेरे पास से आया, मंत्री के रेफरेंस से आया है, तो चलो इसका पहले काम करो। ये टेक्नोलॉजी से सबको समान न्याय देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में अभी हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। तो आप इस तरह से अगर करोगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो, उसको लैंड एक्विजिशन के लिए कोई दिक्कत ना आएगी, ना किसानों में आएगी। आप आज ये मत समझिए ये सम्मान आपका हुआ है, जरूर आपका हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देश के हर एक किसान का ये सम्मान है। क्योंकि हमारा किसान कितने दिन इस तरह से हमारे किसी ऑफिस में जाएगा, चक्कर काटेगा? अब ये सारे चक्कर बंद होने वाले हैं। यही सोच प्रधानमंत्री जी की है। इस सामान्य से सामान्य आदमी के पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट उसको किस तरह से हम लोग बेनिफिट दे पाए, यही प्रयास हमारे मंत्रालय का, हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हो रहा है। मैं एक बैंक का चेयरमैन भी रह चुका हूं। मुझे एक अनुभव ऐसा आया, एक ही आदमी ने एक ही लैंड के ऊपर 2 बैंक से लोन लिया। अभी ये बैंक को लिंक किया, इसलिए आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। वो तो लोन लिया दोनों बैंक से, अभी दोनों बैंक झगड़ रहा है ये जगह किसके पास जाएगा, क्योंकि मॉर्गेज दोनों को एक ही लैंड कर दी। वो तो छूट गया, केस चलेगा, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसको बैंक से लिंक करने से ये फायदा होगा कि अभी कोई भी आदमी एक ही लैंड 2 बैंक को मॉर्गेज नहीं कर पाएगा। ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक आसान तरीका बैंक से लोन लेने का भी और पारदर्शिता का भी होगा। ये मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। और आगे चल के बैंक में अगर लोन हम लोग मांगते हैं तो इसको वेरीफाई करा के लाओ, या फिर इसको फिर तहसील ऑफिस में भेजो, इसकी सत्यता को ये करके लेके आओ। तो वो भी करने की जरूरत नहीं होगी कि उसको एक क्लिक में बैंक में भी पता चलेगा कि ये इसी की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी उसी के ऊपर ये लोन ले रहा है। तो इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। इसलिए इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे किसानों को इस क्षेत्र में होगा, ऐसा मैं यहां से जरूर कहूंगा। हमारे आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे भारत के धरती का आज बड़े परिवर्तन की गवाह बन रही है। इसलिए परिवर्तन भारत के नागरिकों का सम्मान का परिवर्तन हो रहा है, ऐसा मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे मंत्रालय के माध्यम से मिली, ऐसी दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है
कि जो बिना इंसान के मेहनत करे आगे बढ़े। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी भी मेहनत, आपकी भी मेहनत, ये मेहनत से प्रधानमंत्री जी की जी सोच है कि किसानों का सम्मान इससे किस तरह से बढ़े और हमारा किसान किस तरह से सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग अगर योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा कदम होगा। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी है तो हिंदुस्तान बोलता है तो सारी दुनिया आज कान खोलकर सुनती है। एक आइसक्रीम पिघल सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स नहीं। बस आपको चाहिए एक अच्छा मेंटर जो आपके स्किल्स को बेहतर बनाए। आप भी 3D एनिमेटेड फिल्म्स बनाना सीख सकते हैं मैक के साथ। अपने करियर को मैक्सिमाइज करें और पाएं मैक्सिमम लर्निंग। कॉल करें 1800-2096-222 पर या फिर विजिट करें www.macindia.com। ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हमेशा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। हम अगर सब प्रयास करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि बन रहा है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहूंगा कि इसी तरह से हम हर एक क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो एक दिन भारत तो आत्मनिर्भर बनेगा है, लेकिन दुनिया भारत के ऊपर निर्भर रहेगी। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम होगा, ये मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज जिनका सम्मान हो रहा है और जो पाइपलाइन में है 504 जिले और जो पाइपलाइन में नहीं है, इनसे प्रेरणा लेके आप भी इस तरह से काम करें कि आपके राज्यों में भी इसी का फायदा आपको हो, किसानों को फायदा हो। मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहूंगा जाते जाते कि अभी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना का जिक्र किया था। ये स्वामित्व योजना, प्रॉपर्टी कार्ड देने से किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है, गांव के आबादी में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, हम लोग देख रहे हैं। मेरे गांव के पड़ोस में एक गांव है, एलकुंदे करके गांव है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, थाने डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे बलिराम गदलिया मानेरकर करके एक किसान है, उसको स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड मिला और उसको 60 लाख रुपया वो प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन मिला। अपने देश में इतना लोन पाने वाला ये पहला किसान है और 60 महीने का अवधि उसको बैंक ने दिया है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होता तो उसको लोन नहीं मिलता। इसका मतलब ऐसा है कि उसकी पोजीशन बनाने का काम ये स्वामित्व योजना के माध्यम से हुआ है। आज का ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप सारे राजस्व के अधिकारी है, कलेक्टर यहाँ पे है, आप लोग अगर इसको गंभीरता से लेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें सुझाव दिया है कि क्या हर एक राज्यों में, हर एक गांव में ये प्रॉपर्टी कार्ड बांटने का प्रोग्राम रख के वहां पे बैंकों को बुला के अगर कोई किसान लोन लेना चाहता है तो वहीं पे जगह पे उसको लोन देने की व्यवस्था हो सकती है क्या? आप इसके बारे में जरूर सोच के प्रधानमंत्री जी के सोच को आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र में भी किसानों के जीवन में क्रांति लाने में हम लोग सफल होंगे, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 9 साल का ये नया भारत मानो नवरंगों से सजा हो
और सोने पे सुहागा वाली बात तब हो जाती है जब 9 राज्यों ने, इनके जिलों ने अपने सफलतम प्रदर्शन से न सिर्फ सम्मान प्राप्त किया है, बल्कि दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने प्रेरणा की प्रज्वला जलाई है। और ये प्रज्वला जलाई है कि 100% सैचुरेशन संभव है अगर दिल में विश्वास और उत्साह का समंदर है। हम निवेदन करते हैं माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आपसे कि कृपया भूमि सम्मान बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लैंड गवर्नेंस बाय स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें और प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें।